we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, our title of this program, Divine Connection, indicates that we have access to God. इस प्रोग्राम का नाम डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क यह हमें बताता है कि हम परमेश्वर तक पहुंच कर सकते हैं। You and I possess a very important quality that makes us connect with God so very personally. आप में और मुझ में हम में एक विशेष योग्यता है जिसके कारण हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। He has created us in His own image. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में ही बनाया है। So that connection helps us to realize our purpose in this world and also to celebrate what we are created for in this world. ये संपर्क हमें इस संसार में अपने उद्देश्य को याद दिलाता है और हम इस संसार में जिसके लिए बनाए गए हैं उसका हम उत्सव मनाते जाएं। Also, when you are connected with God, it gives you great fulfillment, meaning and also happiness. और जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो यह आपको परिपूर्णता और अर्थपूर्ण जीवन और साथ ही खुशी भी देता है। And we move on to our meditation today on the cross because these days people are mostly thinking about cross for the 40 days before Jesus' crucifixion. और इन दिनों में जैसे कि लोग यीशु के क्रूसीकरण के पहले 40 दिन तक क्रूस पर मनन करते हैं तो इस समय भी हम यहाँ पर क्रूस पर मनन करने वाले हैं। We know that more than other times people remember the cross nowadays. हम जानते हैं कि बाकी दिनों की तुलना में इन दिनों में लोग क्रूस को ज्यादा स्मरण करते हैं। And all this move on to celebration of Good Friday and Easter. और ये सब आगे जाकर गुड फ्राइडे और ईस्टर के उत्सव में लेकर जाता है। And when you think about Good Friday, it is good because Jesus died instead of me or for me, that makes me a better person and having to have a better relationship with God. जब हम गुड फ्राइडे के बारे में देखते हैं तो ये निश्चय उत्तम शुक्रवार है जहां पर यीशु मसीह मेरे लिए मर गए जिसके कारण वो मुझे एक अच्छे व्यक्ति बनाते हैं। So Jesus died for all mankind. तो यीशु मसीह सभी मानव जाति के लिए मरे हैं। So when you think of the cross, there are different images that are coming to our mind. जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तो निश्चय हमारे मन में अलग-अलग तस्वीरें उठती हैं। It is a holy symbol for many Christians. ये तो बहुत से मसीह लोगों के लिए पवित्र चिन्ह के रूप में है। And it is an identity of their faith. ये तो उनके विश्वास की पहचान है। And you see different crosses in churches and it's a sign that people can know that Jesus died on the cross and we are remembering it. और चर्च पे आप अलग-अलग तरह के क्रूस के चिन्ह देख सकते हैं। ये याद करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गए हैं। Some people keep a cross in their pocket. और कई लोग तो क्रूस को अपने जेब में भी रखते हैं। Some people wear it on their neck. और कुछ लोग इसे अपने गले में पहन लेते हैं। So I have a small cross in the car that I drive. और मैं जो कार चलाता हूँ उसमें वहाँ पर एक छोटा सा क्रूस है। And it's a reminder for me and so often that I am belonging to God. ये अक्सर मुझे याद दिलाता है कि मैं तो परमेश्वर का हूँ। No matter where I may be traveling from, even for others it is a sign that I belong to Christ. चाहे मैं जहाँ भी यात्रा कर रहा हूँ, चाहे मैं दूसरे शहर में हूँ, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं तो मसीह का हूँ। So when I have a cross that is not for any magical purposes. तो जब मेरे पास में क्रूस है तो ये किसी जादू के उद्देश्य के लिए नहीं है। Some people think it is a good charm or good luck charm. कुछ लोग सोचते हैं ये तो अच्छी तकदीर के लिए या गुड लक वाला चार्म है। It is not even meant to protect me from physical harm. ये तो मुझे शारीरिक हानि से बचाने के लिए भी नहीं है। But the simple reason to have a cross just in front of me is to remind that Jesus died for me. Again and again it comes to my mind when I think of the cross. मैं अपने सामने क्रूस इसीलिए रखता हूँ कि ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मरे। And today I want to share with you about the meaning of the cross, which is the message, and also I can title it as the message of the cross. आज मैं आपको क्रूस का अर्थ बताना चाहता हूँ और इससे मैं क्रूस का संदेश भी शीर्षक दे सकता हूँ। Why is the cross? क्रूस क्यों है? What is the cross? क्रूस क्या है? Is there not any other means by which the Son of God could have died? क्या और कोई जरिया नहीं था जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र मर सकता था?
Oh, there could have been many other ways in which he could have been killed. यानी उसकी हत्या करने के लिए तो बहुत से तरीके होंगे। When Jesus was doing ministry on this earth, some people were trying to stone him to death. जब यीशु इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे तो कुछ लोग उस समय उसे पत्थरवा करके मारने की योजना बना रहे थे। There are different ways Satan tried to kill Jesus. और यहाँ तक कि शैतान ने भी यीशु को अलग तरह से मारने की कोशिश की। But cross is the way God has decided to have his son sacrifice for the sins of the world. लेकिन परमेश्वर ने एक क्रूस का तरीका निश्चित किया था कि पूरे संसार के लिए वो अपने पुत्र को बलिदान कर दे। So when you think of the cross, what does it communicate to you? तो जब आप क्रूस के बारे में सोचते हैं तो ये आपको क्या बताता है? I want to read a passage from 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 25. मैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 से वचन 25 तक के इस वचन भाग को पहले पढ़ना चाहता हूँ। And it's interesting that this passage, as you read it carefully and meditatively, you begin to understand cross is a place where God revealed or manifested his wisdom very clearly, and some people don't understand it. जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप इस बात को पाते हैं कि क्रूस ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को बहुत ही प्रगट रूप में दिखाया है और कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। In 1 Corinthians 1:18 onwards, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 से आगे, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। इस तरह वचन कहता है। And God is asking this question in the next verse. और अगले वचन में परमेश्वर इस तरह से सवाल पूछते हैं। In the 20th verse, where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? वचन 20, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? And 21st verse, let me read it. For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. वचन 21, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। So, Jews demand miraculous signs, Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। Maybe it is a long passage as we have read according to your opinion. आप सोच रहे होंगे हमने बड़ा लंबा वचन भाग पढ़ा है, But this passage talks about the very value of the cross and the way God sees the cross and how the wisdom is manifested on the cross. लेकिन ये क्रूस के मूल्य के बारे में बताता है। परमेश्वर क्रूस को किस तरह से देखते हैं वो बताता है, और परमेश्वर ने इसमें बुद्धि कैसे प्रकट की वो बताता है। And what I basically observe here is God works very differently from the way man works. यहाँ बुनियादी बात मैंने देखी है कि मनुष्य जैसे काम करते हैं, परमेश्वर उनसे तो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करते हैं। God's expectations are different. परमेश्वर की अपेक्षाएं अलग हैं, God's plans are different. परमेश्वर की योजनाएं अलग हैं। So by that way, He is making the great wisdom of human beings as nothing. और इस तरह से मनुष्य की बड़ी बुद्धि को भी वो बिल्कुल बेकार और व्यर्थ कर देते हैं। The great strength of human beings is gone, and God's weakness is really greater than man's strength, human strength. मनुष्य का जो बल है वो तो चला जाता है, और परमेश्वर की जो कमजोरी है वो तो मनुष्य के बल से भी बहुत ज्यादा है।
And that's the kind of a message cross is revealing to us. और इस तरह का संदेश क्रूस हम पर प्रकट करता है। So, the wisdom of God is revealed. तो परमेश्वर की बुद्धि प्रकट की गई है, Where all the wisdom of God is evident. परमेश्वर का सारा ज्ञान प्रकट होता है। My dear friends, everywhere you see God's wisdom in this world. मेरे दोस्तों, इस संसार में आप हर जगह पर परमेश्वर की बुद्धि को देखते हैं, And particularly we see God's wisdom in the creation He has made. और खास करके परमेश्वर ने जो सृष्टि की है उसमें परमेश्वर की बुद्धि हम देखते हैं। See, when God created the earth, He planned it so well. The moon, sun and the stars and everything that is moving on. The wisdom of God is evident and clearly seen. जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया तो उसने सूरज, चांद और तारे ये सब कुछ बनाए। इसमें परमेश्वर की बुद्धि बहुत प्रकट रूप में दिखाई देती है। I see His wisdom in my observation. मेरे नजरिए से मैं उसकी बुद्धि को देखता हूँ। At the same time, scriptures also reiterate that very idea strongly. और इसी के साथ साथ वचन भी इसके बारे में इसी विचार को बड़ी मजबूती से बताता है। Book of Proverbs chapter 3 verse 19. नीति वचन की किताब अध्याय 3 वचन 19। By wisdom the Lord laid the earth's foundations, by understanding He set the heavens in place. कहता है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। So you see, God's wisdom and God's knowledge have worked together in the establishment of earth and heaven. तो आप देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान ने और परमेश्वर की बुद्धि ने आकाश और पृथ्वी को बनाने के लिए एक साथ काम किया। And that's why we observe the earth moving at a very steady speed. और इसीलिए हम देखते हैं कि ये पृथ्वी जो है वो तो बिल्कुल एक निश्चित रफ्तार में घूमती चली जा रही है। And it is rotating regularly so that we have different seasons, different movements on earth. और ये सही रीति से घूमती है और इसी के कारण पृथ्वी पर अलग अलग ऋतु और अलग अलग काम होते हैं। And in the book of Psalms 104:24, भजन संहिता 104 वचन 24 में, how many are your works, O Lord? In wisdom you have made them all. The earth is full of your creatures. हे यहोवा, तेरे काम अगणित हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इस तरह से ये वचन कहता है। So looking at everything on earth, you see the wisdom of God. पृथ्वी पर सब कुछ देखते हुए आप यहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि देखते हैं। But His wisdom is even more evident in the creation of man. लेकिन मनुष्य की सृष्टि में उसकी जो बुद्धि है वो तो और भी ज्यादा प्रकट रूप में दिखती है। Even more in the very creation of human body. मनुष्य की देह बनाने में इसे और भी ज्यादा प्रकट रूप में देख सकते And the हैं। animals and the ecological balance that's observed in the universe. ये प्राणी और सब कुछ जो संतुलन किया जाता है इस संसार में उसमें भी दिखती है। So the Creator God has manifested His wisdom so we can know Him, we can understand Him. सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने बुद्धि को प्रकट किया ताकि हम उसे जान सके, उसे हम समझ सके। And today the wisdom of God is really neglected, dear friends. और आज मेरे दोस्तों, परमेश्वर की बुद्धि को सच में अनदेखा किया जा रहा है। Even though God has revealed about Himself so clearly in everything that He has created, a lot of people do not understand the very general revelation that you observe in the world about God. परमेश्वर ने सारी सृष्टि में अपने आप को इतना प्रकट किया है, लेकिन परमेश्वर के बारे में इस प्रकाशन को हम इस सृष्टि में देखकर नहीं समझ पाते हैं। These are all nothing but the revelation of God to mankind, so mankind could know Him. ये सब मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रकाशन है ताकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को जान सके। God's qualities are revealed through this. इसके द्वारा परमेश्वर की विशेषता प्रकट God's होती है। power is evident in this. परमेश्वर की सामर्थ्य इसमें प्रकट The होती है divine nature is clearly seen. और ईश्वरीय स्वभाव स्पष्ट दिखता है And God wants us to understand. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसे समझ ले। My dear friends, the purpose of God in creating all this and in revealing all this is clearly mentioned in the book of Romans 1:19-20. रोमियो अध्याय 1 वचन 19 और 20 में इसमें परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल प्रकट रूप में बताया गया है। It says, since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। And that's the purpose where God's wisdom is seen in the world, where
He wants us to know Him because He has revealed His wisdom in the creation. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में अपनी बुद्धि प्रकट की और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे जानें, अपने सृष्टिकर्ता के So, रूप में जानें। cross is a place we see God's wisdom. We will see that a little later after the music break. तो हम देखते हैं कि क्रूस ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की बुद्धि प्रकट की गई है। संगीत के ब्रेक के बाद हम इसे और भी ज्यादा विस्तार से But देखेंगे। God's wisdom is seen in the nature. That's what we emphasize now. लेकिन परमेश्वर की जो बुद्धि है वो तो सृष्टि में भी देखी जा सकती है। इस बात पर अब हम जोर दे So when रहे you look हैं। at the creation, you can see how great our God is. तो जब आप सृष्टि को देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि हमारे परमेश्वर सच में कितने महान And हैं। that's a great God we are preaching to you today. आज हम उसी महान परमेश्वर के बारे में You know, आपको if I प्रचार tell कर you रहे He हैं। loves you, will you believe? अगर मैं आपसे कहूं कि वो आपसे प्रेम करते हैं तो क्या आप इस पर You विश्वास know, if करेंगे? I tell you He died for you on the cross for your sins and my sins, if you believe, will you believe? अगर मैं आपसे कहूं कि वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए तो क्या आप इस बात पर विश्वास And करेंगे? He is already at work in your life. If I tell you that, will you believe? और वो अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं तो क्या आप इस पर विश्वास And, करेंगे? think about that as we take a brief break for music now. अब जैसे हम संगीत के लिए छोटा ब्रेक ले रहे हैं, आप इसके बारे में During the सोचिए। music break, our telephone numbers will be displayed on the screen. Copy down our phone numbers and contact us. And a lot of you are giving us a very positive feedback. And thank you so much for your encouragement. संगीत के ब्रेक के दौरान हमारा नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आ रहा है। आप इसे लिख लीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। आप में से बहुत से लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत Many of you are धन्यवाद। sending emails. आप में से बहुत से लोग ईमेल्स भेज And रहे हैं। if you want to study about God and the Bible, you can study leisurely at our website messagesfromtheguru.org. अगर आप बाइबल का अपने समय के अनुसार अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए messagesfromtheguru.org पर आप अध्ययन Enjoy कर the सकते हैं। music break now and we will be back shortly. तो अभी संगीत के ब्रेक का आनंद उठाइए और हम जल्द लौट आएंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
We are back after the music break and I hope you enjoyed the music. हम संगीत के ब्रेक के बाद लौट आए, आशा है आपने संगीत का आनंद उठाया। You know, we were studying about the season and importance given to the cross, and we said cross is the place where God manifested His wisdom. हम इस समय में क्रूस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्रूस के महत्व को देख रहे हैं, और हमने कहा था क्रूस ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को प्रकट किया था। We said the wisdom of God is evident in the creation He has made. हमने ये कहा कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की उसमें उसकी बुद्धि प्रकट दिखाई देती है। There is another place in which God's wisdom is revealed, that is the Bible. और एक और जगह पर परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होती है और वो तो बाइबल है। You know, when you read the laws of God, you see His wisdom. जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं तो आप उसकी बुद्धि को देखते हैं। And the commandments He has given are very meticulously thought over because He understands you and me very well. और जो आज्ञाएं उसने हमें दी है वो सोच समझ कर दी है, क्योंकि वो आपको और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। In the book of Deuteronomy, the Old Testament, 4th chapter, verses 5 and 6, it says, "See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it." 6th verse says very clearly, "Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations who will hear about all these decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people." सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उनमें तुम उनके अनुसार चलो। वचन 6, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी रीति से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। It is not just that the people of Israel become wise by reading the laws of God. ये केवल ऐसा नहीं कि परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़कर इस्राएली लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। At the same time, God is saying it is going to reflect, and the people of the world are going to recognize that you are a wise generation, wise people. परमेश्वर कहते हैं कि पूरे संसार के लोग इस बात को जान लेंगे, इस बात को मानेंगे कि तुम बुद्धिमान और समझदार लोग हो। That's why Queen of Sheba visited Solomon and said, "Oh, you are great and your laws of God are really wonderful." इसलिए शीबा की रानी ने कहा कि तू महान है और तेरे परमेश्वर यहोवा की जो व्यवस्था है वो सच में बहुत ही अद्भुत है। And it's because God has given that to the people of Israel. क्योंकि परमेश्वर ने ही तो ये इस्राएली लोगों को दी थी। To understand this further, I want to read Psalm 119:98. इसे और आगे पढ़ने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 119 वचन 98। Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। इस तरह So कहता you है। can understand that you become wiser than your enemies by following the commandments of God, by observing the decrees of the Lord. आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर की विधियों को मानकर आप अपने शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकते, इस बात को My जान dear ले। friends, that's why read the Bible. मेरे दोस्तों, इसलिए बाइबल In what पढ़िए। way it is connected to the cross? ये किस तरह से क्रूस से जुड़ी My हुई dear है। friends, this Bible teaches about the cross. मेरे दोस्तों, ये बाइबल क्रूस के बारे में सिखाती This है। Bible teaches that cross is the place where God revealed His wisdom. बाइबल बताती है कि क्रूस ऐसी जगह है जहां परमेश्वर ने अपनी बुद्धि प्रकट की And है। I am telling you, creation is evident for God's wisdom. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सृष्टि भी परमेश्वर की बुद्धि को निश्चित रूप में प्रकट The करती Word है। of God, the Bible is an evidence of God's wisdom. परमेश्वर का वचन यानी बाइबल ये परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट The करता है। cross is the evidence of God's wisdom. और क्रूस जो है ये तो परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करने वाला We है। already read that verse, 1 Corinthians 1:21-25. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 से वचन 25 तक हमने इन वचनों को पहले ही पढ़ लिया But the है। difficulty I want to share with you in connection with that is the wisdom of God that is revealed on the cross is not understood by men. अब यहाँ पर जो मुश्किल की बात वो ये है कि क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने जो अपनी बुद्धि प्रकट की है उसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। What was the problem they were having? उन्हें क्या समस्या हो रही थी। When you look at the cross, what does it communicate to you?
जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो ये क्रूस आपसे क्या बात Lot करता of है? people think of cross as something very, very weak. बहुत से लोग क्रूस की ओर ऐसे देखते हैं कि जैसे ये तो बहुत ही कमजोर सा A है। man hanging helplessly. एक व्यक्ति वहां असहाय How लटका है। can that person save you? वो व्यक्ति कैसे आपको बचा It's सकता not है? what the people around Jesus' crucifixion said. First save yourself and then you save others. क्रूसीकरण के समय यीशु के आसपास के लोगों ने तो यही तो कहा था कि पहले तो अपने आप को बचा और फिर दूसरों को There बचाना। were no friends around him and many people abandoned him at that time. उसके आसपास कोई मित्र नहीं थे और बहुत से लोगों ने तो उस समय उसे त्याग दिया So when you था। look at that, it was a very, very weak point of Jesus' life. जब आप इसे देखते हैं तो ये तो यीशु के जीवन की सबसे But कमजोर God घड़ी is थी। saying, that is the power of God लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि यही तो परमेश्वर की for the सामर्थ है salvation of everyone who believes. विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए। In the cross, God accomplished salvation for mankind. उस क्रूस में ही परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार हासिल कर It लिया। may look foolishness to many people शायद ये बहुत से लोगों के लिए मूर्खता because दिखाई दे, people are emphasizing wisdom these days. क्योंकि इन दिनों में लोग बुद्धि पर ज्यादा जोर दे But रहे they do हैं, not realize that is God's wisdom. पर वो नहीं जानते कि यही परमेश्वर की बुद्धि You know, है। that verse we read says Greeks look for wisdom. जो वचन हमने पढ़ा ये कहता है यूनानी तो ज्ञान की खोज में रहते हैं Jews look for miraculous signs. और यहूदी तो चमत्कारी चिन्ह The चाहते Jews said हैं। that day, come down, यहूदियों ने कहा कि तू नीचे come उतर आ, down from the cross. तू क्रूस से नीचे Oh, उतर आ। that would have been wonderful, you know. ओ ये तो सच में बहुत ही अद्भुत But होता, Jesus did not do that because his purpose was to die. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका उद्देश्य तो मरने का It's था। only when he dies you and I can be saved. केवल उसके मरने पर ही आप और मैं उद्धार पा सकते And थे। Jesus saved us because of that death on the cross. क्रूस की मृत्यु के द्वारा ही यीशु ने हम सबका उद्धार And किया है। today we have to communicate that to people. और आज हमें ये लोगों को बताते चले जाना है। God's wisdom is evident today. परमेश्वर की बुद्धि आज प्रकट रूप My में dear दिखती friends, है। not just on the cross, मेरे दोस्तों केवल क्रूस in पर my ही life, नहीं, in your life today. लेकिन आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में Something भी that God is doing is amazing in the minds of people who are watching us. लोग हमें जो देख रहे हैं उनके मन में परमेश्वर सच में बहुत ही अद्भुत ऐसे काम करते जा And रहे हैं। when you see the cross, the message I receive is, all this I have done for you. जब हम क्रूस को देखते हैं तो ये संदेश मुझ तक पहुंचता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया Will है। you believe it? क्या तुम Will विश्वास you come करोगे? to me? क्या तुम मेरे पास Though आओगे? it may look foolishness in the eyes of the world, but it is the greatest power. हालांकि ये संसार की नजरों में मूर्खता दिखाई देता है, लेकिन ये सबसे My बड़ी dear friends, सामर्थ the है। power of the cross is evident today, even as you see millions and millions of crosses all over the world, serving as an attraction of the love Jesus Christ revealed on the cross of Calvary. मेरे दोस्तों, जैसे आप पूरे संसार में लाखों करोड़ों क्रूस देखते हैं, ये तो उस प्रेम को दर्शाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर प्रकट किया था। Remember that love. इस प्रेम को आप याद रखिए। Give your life over to Him. अपना जीवन आप उसे May सौंप God दें। bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number